آزاد جموں کشمیر کے وزیر اطلاعات اور وزیر سیاحت مشتاق منہاس اور وزیر ہائیڈرل پاور چودھری رخسار احمد کا دورہ برطانیہ زور و شور سے جاری ہے، جس کے دوران آزاد کشمیر میں سیاحت کے فروغ، ہائیڈرل سیکٹر میں سرمایہ کاری اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جارحیت کے حوالے سے بھرپور آگاہی مہم چلا رہے ہیں۔ مانچسٹر میں ہونے والی تقریب میں اسی مہم کا حصہ تھی، جس کا احوال بتائیں گے ہمیں اعتزاز عاصم اپنی رپورٹ میں۔ مانچسٹر کے مقامی ریسٹورنٹ میں پاکستان پریس کلب برطانیہ کی جانب سے آزاد کشمیر کے وزیر اطلاعات اور وزیر سیاحت مشتاق منہاس اور وزیر ہائیڈرل پاور چودھری رخسار احمد کے اعزاز میں استقبالیہ دیا گیا، جس میں کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر وزیر سیاحت مشتاق منہاس کا کہنا تھا کہ سیاحت کو فروغ دینے کے لیے آزاد کشمیر بھر کے ریسٹ ہاؤسز کو 3 ماہ کے لیے سیاحوں کے لیے مختص کر دیا ہے۔ کوئی بھی سیاسی رہنما یا آفیسر اس دوران انہیں استعمال نہیں کر سکے گا۔ مشتاق منہاس کا کہنا تھا کہ پیرا گلائیڈنگ کے شوز آزاد کشمیر کے دوسرے اضلاع میں کامیاب ثابت ہوئے ہیں، اب مظفر آباد میں ہونے جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں برطانیہ اور دیگر ممالک کے پیرا گلائیڈرز کو بھی مدعو کیا ہے۔ سیاحوں کو پریشانی سے محفوظ رکھنے کے لیے اسمارٹ کارڈ کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ سیاحت کے حوالے سے ہم ایک انٹرنیشنل پیرا گلائیڈنگ کپ جو ہے وہ مظفر آباد میں کر رہے ہیں، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم 50 ممالک کے پیرا گلائیڈرز کو دعوت دیں کہ وہ مظفر آباد آئیں، اور 27 سپٹمبر جو کہ ورلڈ ٹورزم ڈے ہے، اس دن سے لے کے 1 اکتوبر تک 4 دن کا یہ ایونٹ ہے، اور اس میں ہم نے دعوت دی ہے اور سب نے کنفرم کیا ہے۔ 36 سے زائد ممالک کی کنفرمیشن آ گئی ہے، اور ابھی ذرا ٹائم ہے، تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ 50 سے زائد ممالک کے پیرا گلائیڈرز وہاں پر آئیں۔ وزیر اطلاعات و سیاحت کا کہنا تھا کہ برطانیہ میں سرمایہ کاروں کو آزاد کشمیر میں سیاحت میں سرمایہ کاری کے لیے دعوت دی ہے۔ میرپور اور منگلا میں واٹر اسپورٹس کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ آزاد کشمیر کے لوگ سیاحوں کی میزبانی کے لیے تیار ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ آزاد کشمیر کے 10 اضلاع میں جو اچھے ٹورسٹ پلیسز ہیں، ٹورسٹ اسپاٹس ہیں، جہاں پر بڑی تعداد میں ٹورسٹ جا رہے ہیں، اور پچھلے سال بھی جو ہے 1.4 ملین یعنی 14 لاکھ ٹورسٹ جو ہے آزاد کشمیر گیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کی تعداد میں بھی اضافہ ہو، اور ان کو ایسی اچھی سہولتیں وہاں پر مہیا کی جائیں کہ وہ لوگ بار بار آزاد کشمیر کا رخ کریں۔ اور اسی سلسلے میں ہم چاہتے ہیں کہ جو اوورسیز کشمیری پاکستانی آزاد کشمیر میں ٹورزم کے شعبے میں وہاں پر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کا یہ سرمایہ وہاں پر محفوظ ہو اور ان کو اچھا منافع وہاں سے ملے۔ ہائیڈرل پاور کے وزیر چودھری رخسار احمد کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر میں تعمیر و ترقی کا جال بچھا دیا گیا ہے۔ اگلے 2 سال میں تمام منصوبہ جات کو مکمل کر دیا جائے گا۔ مسئلہ کشمیر بارے چودھری رخسار احمد کا کہنا تھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات میں مسئلہ کشمیر پر جو ثالثی کی بات کی ہے خوش آئند ہے۔ بھارت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر اظہر، ڈاکٹر طلعت، ڈاکٹر آصف اقبال اور دیگر نے آزاد کشمیر میں سیاحت کے فروغ کے لیے کی جانے والی کاوشوں کو خوش آئند قرار دیا۔ اوورسیز کشمیری کمیونٹی نے حکومت آزاد کشمیر کی جانب سے سیاحتی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے حکومتی اقدامات کو خوب سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ سہولیات دستیاب ہوں تو وہ اپنے دوست احباب کو بھی سیاحت کے لیے پاکستان لے جانا پسند کریں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ اعتزاز عاصم چودھری، 92 نیوز، مانچسٹر۔ برمنگھم میں شہدائے کشمیر کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے شہدائے کشمیر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں آل پارٹیز کے نمائندگان اور کارکنوں نے بھرپور شرکت کی۔ عابد کاظمی کی رپورٹ۔ برمنگھم میں شہدائے کشمیر کانفرنس کی صدارت سابق ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کوٹلی ناظم حسین گجر نے کی۔ کانفرنس میں وزیر تعمیرات عامہ آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر چودھری عزیز اور چودھری رخسار خاص طور پر شریک ہوئے۔ شہدائے کشمیر کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے آزاد کشمیر حکومت کے وزراء چودھری عزیز، چودھری رخسار، عابد زبان کھٹک، عبد الرحمان رائی اور دیگر مقررین نے کہا کہ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر مسئلہ کشمیر اس وقت طویل ترین حل طلب مسئلہ رہ گیا ہے۔ دنیا بھر میں چلنے والی کسی بھی آزادی کی تحریک کو دیکھا جائے تو کشمیریوں کی قربانیاں
दुनिया कई गुना ज्यादा हैं। मुकर्रीन का कहना था कि हमें यकीन है मकबूजा जम्मू और कश्मीर के मासूम अवाम भी आज़ादी जैसी नेमत से हमकनार होंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के हालिया दौरा अमरीका के दौरान अमरीकी ऐवानों में मसला कश्मीर पर सालसी की पेशकश इंतहाई खुशाइंद बात है। इस मौके पर आज़ाद कश्मीर के वज़रा चौधरी अजीज, चौधरी रुखसार, मेज़बान नाज़म गुज्जर, अब्दुर्रहमान राई, फ़हीम कियानी और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शोहदाए कश्मीर और मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम से इजहार यकजहती किया। रियासत जम्मू कश्मीर के मुसलमानों की जानब से जहाद का और शहादत का एक दिन चला आ रहा है, उस निस्बत से आज यहाँ यौम शोदा या शोदा कॉन्फ्रेंस मनाई गई। हमें शोदा की कुर्बानियों पर न सिर्फ फ़ख्र है बल्कि शोदा की कुर्बानियों की वजह से इंशाअल्लाह हर रोज़ जो शहीद कुर्बानियाँ हमारे दे रहे हैं, हमें यकीन है कि मसला कश्मीर जो है वो बहुत जल्द हो। 10 लाख कश्मीरी यहाँ पर मौजूद हैं और मैं ये समझता हूँ कि इनकी जो कश्मीर के हवाले से बात है यही कर सकते हैं और इससे और बेहतरी कश्मीर के इशू पर और कुछ नहीं हो सकती। कश्मीर की आज़ादी जो है ये अभी दूर नहीं है अल्लाह के फजल व करम से, और इस पर आप लोगों की ख़ासकर मीडिया जो हमारा यहाँ पर मौजूद है इंग्लैंड में, इन आपका भी बड़ा किरदार है। इंडिया जिस तरह कश्मीर के अंदर जुल्म और ज़्यादती कर रहा है, नहते मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है, औरतों के साथ बेरहमी की जा रही है, ये सिर्फ जो पॉलिसी है इंडियन वो सिर्फ मुसलमानों के लिए है। और मोदी ये जो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है, ये अगर हम कश्मीरी हम पाकिस्तानी नहीं कहते, ये जो इंग्लैंड और बाकी दुनिया के जितने भी ममालिक हैं इसको दहशतगर्द इन्होंने करा दिया था। इमरान खान का जो दौरा था अमेरिका का और ट्रंप के साथ जो उसके मुज़ाकरात हुए, उसमें कश्मीर के इशू को जितनी तक़वियत मिली है, इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि ये सिलसिला अभी आगे जाएगा और इंशाअल्लाह कश्मीर बन के रहेगा। जो पिछले अरसे में प्रेसिडेंट अमेरिका ने जो स्टेटमेंट दी कि मैं साल सी का रोल प्ले कर सकता हूँ, इस एतबार से आज मसला कश्मीर बहुत फ्लैश पॉइंट हो चुका है। तो ये एक मैसेज जाना चाहिए मकबूजा कश्मीर के उस पार जो आबाद लोग हैं कि हम जो कश्मीरी इस तरफ हैं और पाकिस्तानी हैं, हम आपकी स्ट्रगल में शाना बशाना शामिल हैं। कश्मीर कॉन्फ्रेंस का जो इनकाद किया गया ये बड़ा खुशाइंद इक़दाम है। इससे मकबूजा जम्मू कश्मीर के मजलूम कश्मीरियों के हौसले बुलंद होंगे। 10,000 एक्स्ट्रा आर्मी को डिप्लॉय किया गया है और ये प्लान बनाया जा रहा है कि 35A को ब्रिगेड किया जाए और बड़ी हैवी डिप्लॉयमेंट वैली के अंदर इस वक्त इंडियन आर्मी की मौजूद है। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। ये यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह आपकी मंजिल करीब आने वाली है और हिंदुस्तान ने जो जुल्म जबर वहाँ अपनाया हुआ है, जो माओ बहनों को शहीद किया जा रहा है, हमारे नौजवानों को झूठे मुकदमों में टार्चर किया जा रहा है और पाबंद सलाह झूठे मुकदमों किया जा रहा है, उनके साथ ज्यादती की जा रही है, हम उसकी भरपूर तरीके से मजम्मत करते हैं। आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के वज़रा ने यहाँ आकर मसला कश्मीर को जो आलमी सतह पर रोशनास कराने के लिए काविशें शुरू कर दी हैं। शुरा का मजीद कहना था कि दुनिया भर की आज़ादी की तहरीक आखिरकार कामयाबी से हमकनार होती हैं, एक दिन तहरीक आज़ादी कश्मीर भी अपने मुंतकी अंजाम को पहुँचेगी। उनका कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने व्हाइट हाउस में मसला कश्मीर पर अहम और मजबूत मौक़िफ़ अपनाया, जिस पर कश्मीरी बरादरी बेहद खुश है। तकरीब में आल पार्टीज के नुमाइंदान और कारकुनों ने भी भरपूर शिरकत की। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। अल खैर फाउंडेशन के चेयरमैन इमाम कासिम ने कहा है कि किसी भी फलाही इदारे के अकाउंट्स की रिकॉर्ड को चेक करके ही उसको खैराती रकूम देनी चाहिए। डोनेशन अमानत होती है और इसे सही जगह पर खर्च करने वाले इदारों को ही देना चाहिए। वो लंदन में ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आबान से बातचीत कर रहे थे, आइए देखते हैं। हमारे साथ इस वक्त लंदन में अल खैर फाउंडेशन के चेयरमैन इमाम कासिम साहब मौजूद हैं। हम इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए इनसे ये पूछते हैं कि जो मुसलमान जो हैं वो फलाही इदारों की तरफ जो डोनेट करते हैं उन्हें किन बुनियादी जो बातें हैं उनका ख्याल रखना चाहिए। इमाम साहब जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी माशाल्लाह, जो लोग इदारे को डोनेट करते हैं तो उसके बारे में सबसे पहले तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान करीम में फरमाते हैं, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, कि अमानत उसको दो जो उसका हक़ अदा करने के अहल हो। तो डोनेशन देना भी एक अमानत होती है और इदारों को जो है डोनेशन करने से पहले ये देख लेना चाहिए कि इदारे का स्टेटस क्या है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है और उनके अकाउंट्स चैरिटी कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद हैं कि नहीं हैं, और फिर अकाउंट्स को स्टडी करें माशाल्लाह जो है, और फिर उसमें पूरी रिपोर्ट सामने आती है कि कौन सा इदारा कितना काम कहाँ पर कर रहा है। जी माशाल्लाह।
تو الحمدللہ جس ادارے کے اوپر لوگوں کو اعتماد اور بھروسہ ہو جو ہے اس کے حساب سے تعاون کریں، سپورٹ کریں. اچھا امام صاحب نے دیکھا کہ رمضان المبارک کے اندر بھی کافی لوگوں نے آپ پر اعتماد کرتے ہوئے آپ کو کافی کیا. اب جو عید الاضحیٰ آ رہی ہے تو آپ نے کس طرح کے لوگوں کی سہولت کے لیے پیکیجز بنائی ہیں تاکہ وہ قربانی میں یہاں سے شرکت کر سکیں؟ جی ماشاءاللہ قربانی کا ہمارا اس سال تقریباً کوئی 30-40 ممالک میں ڈیلیوری ہے، اور اس میں پرائسنگ منیمم یہ کہہ لیجئے اسٹارٹنگ جو ہے شاید 27 پاؤنڈ سے ہے اور ہائیسٹ پرائس 250 پاؤنڈ پر ہے. تو ہر علاقے میں جو یا ہر ملک میں جو جانور کی قیمت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ماشاءاللہ وہ پرائسز رکھی ہیں. مثلاً پاکستان، بنگلہ دیش اور کشمیر جو ہے اس کی ایک پرائس ہے، انڈیا کی جو ہے الگ پرائس ہے، پھر اسی طریقے سے افریقہ کے ممالک کی الگ ہے. ویل چیئر کا پروجیکٹ کر رہے ہیں تو اس میں بھی ہم ایجوکیشن کو مد نظر رکھتے ہیں کہ اس ویل چیئر کے ڈسٹریبیوشن سے ہم ایجوکیشن میں کیا سہولت پیدا کر سکتے ہیں. سلائی کی مشین کا ہے تو سلائی کی مشین کے جتنے بھی سینٹرز ہیں وہاں جو ہے روزانہ 1 گھنٹہ ایجوکیشن کے اوپر تعلیم ہوتی ہے. تو سلائی کی مشین بذات خود ایجوکیشن ہے، لیکن اس میں کلمہ، نماز اور پھر جو ہے فرائض اور مستحبات، واجبات، اسلامی جو بنیادی عقائد ہیں اور جو ذمہ داریاں ہیں اس کے ماشاءاللہ ٹریننگ ہوتی ہے. تو ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ہمارا جو سب سے بڑا فوکس ہے وہ میڈیکل کے اوپر ہے، چونکہ یہ 2 ایسی فیلڈ ہیں ایجوکیشن اور میڈیکل جس کے اوپر بہت کم لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں اور سب سے زیادہ ضرورت ان 2 چیزوں کی ہے. کوونٹری کے المدینہ جامع اینڈ فاطمیہ انسٹیٹیوٹ میں شان صدیق اکبر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس کی سرپرستی علامہ محمد نبیل قادری نے کی. خاور راجہ اپنی رپورٹ کے ساتھ. کوونٹری کے المدینہ جامعہ اینڈ فاطمیہ انسٹیٹیوٹ میں شان صدیق اکبر کانفرنس کا انعقاد ہوا، جس کی سرپرستی علامہ محمد نبیل قادری نے کی. تقریب میں بھارت سے آئے پیر سید ہاشمی میاں، صاحبزادہ پیر نور العارفین صدیقی اور سید محمد نورانی سمیت متعدد علماء مشائخ عظام شریک ہوئے. اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے علماء مشائخ کا کہنا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے لیے بے پناہ قربانیاں دیں اور اپنی زندگی فروغ اسلام اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں صرف کر دی. ایک پیغام یہ دینا تھا کہ انبیاء کے بعد جو سب سے عظیم ہستی ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، اور آپ کے اسوہ پر اور آپ کی تعلیمات جو ہیں اس پر عمل کر کے ہم جو امت مسلمہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کما حق ہو جو تعلیمات ہیں وہ ان پر عمل پیرا ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ انبیاء کے بعد آپ کی ہستی سب سے افضل ترین ہستی تھی. کثیر تعداد میں نوجوان، بچے، بزرگ یہاں شریک ہوئے. علماء کرام کی بھی کثیر تعداد تھی اور سب علماء نے اپنے خصوصی خطابات سے عوام کو کے قلوب و اذہان کو منور فرمایا. آج کانفرنس کا جو عنوان تھا وہ افضلیت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. پیغام یہ تھا کہ انبیاء کے بعد کیونکہ کوئی اور نبی تو نہیں آئے گا، ہمارے لیے جو سب سے اعلیٰ نمونہ ہے اور جو سب سے بہترین رول ماڈل ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار اقدس پر روشنی ڈالتے ہوئے مقررین نے مزید کہا کہ ان کے نقش قدم پر چل کر دنیا اور آخرت کی کامیابیاں سمیٹی جا سکتی ہیں. کانفرنس میں مقامی علماء کرام نے بھی شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر روشنی ڈالی، جبکہ اختتامی دعا پیر سید ہاشمی میاں نے فرمائی. خاور راجہ 92 نیوز برمنگھم. لندن میں المدینہ حج اینڈ عمرہ لمیٹڈ کی افتتاحی تقریب کے موقع پر پروقار محفل نعت کا اہتمام کیا گیا، جس کی صدارت پیر سید اشتیاق حسین نے کی. سلیم صابری اپنی رپورٹ کے ساتھ. ایسٹ لندن کے علاقے والتھمسٹو میں المدینہ حج اینڈ عمرہ لمیٹڈ کے افتتاح کے موقع پر محفل نعت خوانی کا اہتمام کیا گیا. تقریب کی صدارت پیر سید اشتیاق حسین شاہ نے کی، جبکہ سیف علی چشتی اور دیگر نے اپنی خوبصورت آواز میں گلہائے عقیدت نچھاور کیے.
सैयद इश्तियाक हुसैन शाह ने अपने खुतबा सदारत में कहा कि कुरानी आयात और हदीस नबवी में हलाल रोजी की बहुत ज्यादा बरकत हैं। मेहनत करने वाले को अल्लाह का दोस्त कहा गया है। तकरीब में मौलाना नौमान, मौलाना जुनैद चौधरी, शौकत अली और दीगर ने आजम जमाती को मुबारकबाद दी। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी अहादीस में रिज़्क़ हलाल तय्यब कमाने की ताकीद फरमाई है और इस सिलसिले में आज हाजी आज़म जमाती साहब ने यहाँ हज उम्रे का ये सिस्टम शुरू किया, ऑफिस का आगाज़ किया है। जो हम नया काम शुरू कर रहे हैं ये अल्लाह ताला के नाम के लिए शुरू कर रहे हैं। हम कोई ऐसी बात नहीं है कि हम बिज़नेस इसको बनाएंगे, ये हमारी शौक़ है और हम चाहते हैं कि हम जिसको ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे उनकी हिफाजत करेंगे, उनके साथ प्यार मोहब्बत से ये काम करेंगे। यहाँ पे माशाल्लाह बड़ी अच्छी महफिल उन्होंने सजाई है और हमारी यही दुआ है चौधरी साहब कि आपको अल्लाह ताला मज़ीद तरक्की दे, यू ग्रो फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। हमारी सपोर्ट आपके साथ है, पूरी कम्युनिटी आपके साथ है। हम चाहते हैं जितनी हमारी कम्युनिटी है वो इनको सपोर्ट करें। नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान में यहाँ खूबसूरत महफिल सजी, हज और उम्रा की फजीलत और उसके अलावा रिज़्क़ हलाल कमाने और खाने पर उलमाए किराम ने खूबसूरत पैगाम दिया है। अल्लाह ताला हमें रिज़्क़ हलाल कमाने की, खाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इनके दिल में, रूह में बसी हुई है और ये अक्सर मस्जिद में जब आते हैं तो बड़ी मौदबाना तरीके से मस्जिद की भी खिदमत करते हैं और अपनी तबीयत के मुताबिक इन्होंने जो अपना कारोबार शुरू किया है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें कामयाबी अता फरमाए। आखिर में पीर सैयद इश्तियाक हुसैन शाह ने उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआ फरमाई। ग्लासगो में सूफीज़म से आगाही के हवाले से फेस्टिवल का इनेकाद किया गया जिसने मुख्तलिफ मज़ाहिब के अफराद को मुसलमानों के करीब कर दिया। 55 साल गैर मुस्लिम शख्स ने कबाली से मुतासिर होकर सबके सामने उसी वक्त इस्लाम कबूल किया। शाहिद मीर की रिपोर्ट में देखिए। सूफीज़म का तस्वुर सारी दुनिया के मुसलमानों में पाया जाता है, हत्ता के गैर मुस्लिम भी इसके रंग में रंगे दिखाई देते हैं। सूफीज़म के हवाले से दुनिया भर में प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जाते हैं जहां पर उसके मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली जाती है। ग्लासगो में भी सूफीज़म से आगाही और आशनाई के लिए मुख्तलिफ इदारों के ताउन से फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। खूबसूरत सूफी मौसीकी और रक्स मुसलमानों के अलावा गैर मुस्लिमों को भी अपने सहर में जकड़ लेता है। इस मौका पर किताबों के मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए जिसमें शुरका ने काफी दिलचस्पी दिखाई। 92 न्यूज से गुफ्तगू में शुरका का कहना था कि सूफीज़म इंसानों में नफरत को खत्म करके सबको एक दूसरे के करीब करता है। इंसानियत से मोहब्बत ही इस्लाम है। होना चाहिए हर साल, हमने बहुत एंजॉय किया। बहुत अच्छा था आज सूफी फेस्टिवल। बहुत सारे कम्युनिटी यहाँ पे आई, बच्चे भी आए, बहुत ईद के लोग भी आए। बहुत अच्छा है। आजकल की जनरेशन के लिए ये होना चाहिए, हर साल होना चाहिए ताकि उन्हें हमारे इस्लाम के बारे में, उन्हें सूफीज़म के बारे में पता चले। सारी कम्युनिटी जो है उनको इस्लाम के बारे में भी पता चला एंड दे डन वेल माशाल्लाह से। सारे ऑर्गेनाइज़र जो हैं दे डन वेल। ये फर्स्ट टाइम ग्लासगो में हुआ है, इस तरह का फंक्शन पहले नहीं हुआ, तो मेरे ख्याल में कि दे डन वेरी वेल, गोज़ वेरी वेल। लोगों को बड़ा अच्छा लगा, एवरीबॉडी एंजॉय एंड हैप्पी। बहुत अच्छा इन्होंने फेस्टिवल किया है। मतलब कि हमारी कम्युनिटी को अपने दीन मज़हब का तो ऑफकोर्स पता ही होता है, लेकिन ये हमें दीन इस्लाम और सूफीज़म हमें दूसरे मज़हब को फैलाना, दूसरे कंट्रीज़ वाले लोग जो हमारे लोकल्स हैं एसेंशली हम उनके साथ रहते हैं, तो उनको जो हमारी मज़हब की समझ आएगी, हमारी कल्चर की समझ आएगी, वो हमारे साथ ज़्यादा इंटरेक्ट होंगे। और ये इतनी माशाल्लाह खूबसूरत जगह है, ट्रायम्बे एक हिस्टोरिकल जगह है और हज़ारों तादाद से आज लोग आए और काफ़ी लोकल बिजनेसेस ने और लोकल चैरिटी पार्टनर्स ने भी काफ़ी काम किया उन्होंने, लोग इधर आए, तो हम बहुत खुश हैं। फेस्टिवल के आखिर में खुसूसी तौर पर कवाली नाइट का भी एहतमाम किया गया जिसमें न सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम भी वजद में आकर झूमते रहे।
एक गैर मुस्लिम शख्स नूरमन ने हाल में ही सबके सामने सूफीज़म की तालीमात से मुतासर होकर कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया, जिस पर हाल नाराए तकबीर और नाराए रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारों से गूंज उठा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ग्लासगो में सूफी फेस्टिवल का एहतमाम किया गया, जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दीगर कई इस्लामी ममालिक के ख़वातीन और हज़रात ने भरपूर तादाद में शिरकत की और ऑर्गेनाइज़र जो थे सूफी फेस्टिवल उनको खराज तहसीन पेश किया। शाहद मीर, 92 न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने अमेरिका में मुस्लिम लीगी वर्कर्स से राब्ते शुरू कर दिए हैं और वो आज न्यूयॉर्क में अपने दोस्तों के हमरा फेरी पर दरियाए हडसन की सैर भी करेंगे। 92 न्यूज़ अमेरिका के ब्यूरो चीफ नदीम मंजूर सुलहरी की रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इन दिनों अमेरिका में मौजूद हैं, जहां उन्होंने पार्टी कारकुनों और ओहदेदारों से राब्ते शुरू कर दिए हैं। उनकी एक नई वीडियो सामने आई है जिसमें वो अपने दोस्तों के हमरा न्यूयॉर्क पर फेरी पर दरियाए हडसन की सैर का लुत्फ उठा रहे हैं। नाजरीन को बताते चलें कि हनीफ अब्बासी की अमेरिका में मौजूदगी की खबर को सबसे पहले रोजनामा 92 न्यूज अमेरिका के ब्यूरो चीफ नदीम मंजूर सुलहरी ने 28 जुलाई को ब्रेक किया था। रिपोर्ट में मोतबर जराए ने उनकी अलेक्जेंड्रिया वर्जीनिया में मौजूदगी के बारे में बताया था कि वो पाकिस्तान के सियासी हालात ठीक होने तक अमेरिका में ही रहेंगे। वो वर्जीनिया में अपने एक पुराने मुस्लिम लीगी रहनुमा के घर ठहरे हुए हैं, जबकि आबिद शेर अली काफी अरसा से न्यूयॉर्क के इलाका लॉन्ग आइलैंड में रह रहे हैं। रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई थी कि ये दोनों सियासी शख्सियात अपनी सियासी क़यादत के दो धड़ों में तकसीम होने से नाला हैं। कहा जाता है कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। रूह की इस ग़िज़ा की मुकम्मल तैयारी में आलात मौसीकी का किरदार बहुत अहम है। इसी पर बताएंगे उस्मान बट। अंदरून टकसाली में वाक़या मौसीकी के आलात की यह मार्केट, जहाँ मुख्तलिफ इक़साम के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट दस्तयाब हैं। यहाँ पर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जो यहीं पर तैयार होते हैं और कौन से यहाँ इंपोर्ट किए जाते हैं, आइए जानते हैं। मौसीकी एक आलमी ज़ुबान है और इस ज़ुबान के अल्फाज आलाते मौसीकी के बगैर अधूरे हैं। साज़ों के शायकीन के लिए अंदरून टकसाली आलाते मौसीकी बहुत पुरकशिश है। शहरी कहते हैं किसी भी मौसीकी के आलात की ज़रूरत हो तो इसी मार्केट का रुख करते हैं। ख़राब आलात की मुरम्मत भी की जाती है। मार्केट है यहाँ पर, और कहीं मिलती नहीं है। ये डफ वगैरह ये इधर ही मिलती है, इधर ही आना पड़ता है। मेरी गिटार है, इसकी स्ट्रिंग्स नहीं थी सही, ये मैं चेंज करवाने हैं अंदरून टकसाली गेट में। दुकानदार का कहना है यहाँ गिटार चाइना से इंपोर्ट करते हैं, जबकि बाकी ढोल, तबला, डुगडुगी वगैरह यहीं तैयार की जाती है। गिटार हो गई, वायलिन हो गया, ये सारे चाइना से आते हैं और हम खाल का काम खुद ही सारा कर लेते हैं। उसमें काफ़ी इंस्ट्रूमेंट है, ये जैसे ये डेकोरेशन पीस है, इसे डुगडुगी बोलते हैं, ये हम खुद बना लेते हैं। ये छोटी ढोलकें लगी हुई हैं, तबले लगे हुए हैं, ये हम खुद बना लेते हैं। अंदरून टकसाली में वाक़या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की मार्केट में नए और पुराने आलाते मौसीकी दस्तयाब हैं। मौसीकी से लगाव रखने वाले शहरी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की खरीदारी के लिए अंदरून टकसाली का रुख करते हैं, जहां हर तरह के मौसीकी के आलात दस्तयाब हैं। कैमरामैन अली रजा के साथ उस्मान बट, 92 न्यूज़, लाहौर। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।